जामिया अबी बकर के इस मुबारक मुकाम पर खुशामदीद कहते हैं। जामिया अबी बकर की तरफ से, मुदीर जामिया अबी बकर की तरफ से, असातिज़ा किराम, तुलबाए अज़ाम और तमाम मंसूबी अल जामिया की तरफ से हम आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी कदर, उलमाए किराम, असातिज़ा अल फाज़िल, सबको इस मुबारक शाम में, इस मुबारक महफिल में रब ताला का शुक्र अदा करते हुए कि जिसने एक दफ़ा फिर हमें इस मुबारक पुर रौनक महफिल में शरीक होने की तौफीक अता फरमाई। सबको लिसाने हाल से कहते हैं कि दीदाओ दिल फरशरा अहलन व सहलन व मरहबा, कि रब ताला का फरमान है व इज़ा क़ुरियल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो उसके लिए खामोश हो जाएं और खामोशी से सुने ताकि तुम पर रहम किया जाए। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन ताब व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा वल्लज़ीना ला यशहदूना अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वि मर्रू किरामा वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ذُرِّيَّاتِنَا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين इमामा। इस साल कुलिया राबिया से फारग होने वाले खुशनसीब तुलबाए किराम अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ ला चुके हैं। उन्हीं में से उनके साथी उबैदुर रहमान आपके सामने आते हैं और अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से अपने दिली जज्बात का इजहार करते हैं। उबैदुर रहमान बिन अब्दुर रहमान फलियतफद्दल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अकरमना बिलवुक़ूफ़ फ़ी हाज़ल मकान वलिब्तिसामतु तुज़य्यिनुल अजफ़ान ونبضات قلوبنا فرحا تعزف الألحان والصلاة والسلام على من أنار قلوبنا بالعلم والإيمان محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إني لا أتشرف بهذا المقام أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وزملاء الخريجين الذين أفتخر بهم وبكوني منهم أن أسمعكم حروف فرحتنا وألقي عليكم كلمة تخرجنا، فقد تتلعثم الكلمات وتتسابق الأحرف في وصف البهجة والسرور
ناهيك عن فقر الآباء وفرح الأمهات. أما رسائل الشكر فامتثالا لقول ربنا سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن أولى وأول من نشكر ولا نشكر معه أحدا سواه هو الله سبحانه جل في علاه. ربنا لك الحمد أنت أهل الثناء والمجد. ثم الرسالة الثانية لكل الأمهات والآباء، فأقول لنفسي وللخريجين: لنقرأ الشيب في رؤوس آبائنا، لنقرأ تجاعيد وجوه أمهاتنا، ثم نتبع ذلك قولا من ربنا: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بارك الله في الغرس فأينع، سلمت أياديكم لنا أجمع، أطال الله أعماركم وزينها ببركم، ونرجو الله أن تسبق أسماؤكم أسماءنا في حشد من ملائكة الرحمن. أما الرسالة الثالثة فهي لمن كان صبرهم زاد الوصول، ومنهاجهم منهاج الأنبياء، وصدقهم كان صدق الوصال. فسبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. فنرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى أساتذتنا الأجلاء، وعلى رأسهم مدير الجامعة، ثم مدير التعليم والمشرف العام بجامعة أبي بكر الإسلامية، والراحل العظيم من كان لنا أبا وأما في هذه الفترة الطويلة الشيخ محمد عياض رحمه الله، أسكنه الله فسيح جنانه، وكل من ساهم في تعليمنا من الحاضرين والغائبين، فقد بذلتم في سبيل تعليمنا الكثير، والله لا يجازي بالكثير القليل، فجزاكم الله عنا كل خير. أيها الحضور الكرام، أما الرسالة الرابعة فهي وصيتي لنفسي ولإخواني وزملاء الخريجين. فاعلم يرعاك الله أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة. قال ابن القيم رحمه الله: من عرف قدر مطلوبه هان عليه ما يبذل فيه. فاغتنم فرصتك أيها الشاب الطالب، لأن الله قد مهد لك طريق العلم. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب. ثم تلا قوله جل في علا: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقوله سبحانه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقوله تبارك وتعالى: وآتيناه الحكم صبيا. فاتخذ الله صاحبا ودع الناس كلهم جانبا. قال فضيل بن عياض رحمه الله: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. مت بداء الهوى وإلا فخاطر، واترك الحي والعيون نواظر. لا تخف وحشة الطريق إذا جئت، وكن في خفارة الحب سائر. واصبر النفس ساعة عن سواهم، فإن لم تجب لصبر فصابر. وصم اليوم واجعل الفطر يوما فيه تلقى الحبيب بالبشر شاكر. وافتم النفس عن سواهم، فكل العيش بعد الفطام نحوك صائر. يا أخا اللب إنما السير عزم، ثم صبر مؤيد بالبصائر. يا لها من ثلاثة من ينلها، يرقى يوم المزيد فوق المنابر. وأخيرا اسمحوا لي أن أخاطبها بحديث محب لحبيبي. شكرا يا جامعتي، يا مكمن ولائي واعتزازي. سأبقى فخورا ما حييت بأني كنت طالبا في جامعة أبي بكر الإسلامية. وصل اللهم وسلم وبارك على خير البرية وعلى آله وأصحابه الأطهار، وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
नुक्ता है। अभी नज़म के लिए मैं दावत दूँगा तालिब इल्म सैयद मुआज़ रहमान मरकज़ अव्वल अलिफ, सैयद मुआज़ रहमान मरकज़ अव्वल अलिफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। महफिल कितनी प्यारी है, प्यारी है, अब्र करम भी जारी है, जारी है। महफिल कितनी प्यारी है, अब्र करम भी जारी है। आज हमारे जामिया में फिर से ख़त्म बुखारी है, फिर से ख़त्म बुखारी है। कलीमतान हबीबतान, कलीमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान, खफीफतान अलल लिसान थक़ीलतान फिल मीज़ान। क़ाल रसूलुल्लाह की सदा हर तालिब का विर्द ज़बा, प्यारे नबी की प्यारी अदा लफ्ज़ों में होती है बया। क़ाल रसूलुल्लाह की सदा हर तालिब का विर्द ज़बा, प्यारे नबी की प्यारी अदा लफ्ज़ों में होती है बया। बातें यहाँ जो होती हैं हर हर जुमला मोती है, बातें यहाँ जो होती हैं हर हर जुमला मोती है। फैज़ यहाँ का दुनिया में जारी है और सारी है, जारी है और सारी है। अब चंद मिनटों के लिए एक मक्ता है, वीडियो का क्लिप है जो आप स्क्रीन पर मुलाहज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। तकरीबन 4 माह पहले जामिया अबी बकर में एक महफ़िल मुनक़द हुई थी और वो महफ़िल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करने वालों की मुलाकात थी, जिन्होंने जामिया से फैज़ उठाया। सन 80 से लेकर सन 95 तक जो तुलबाए किराम जामिया में पढ़ते रहे, दूर दराज मुल्क के गोशों से वो जामिया की दावत पर तशरीफ़ लाए और अपने मादरी इल्मी की ज़ियारत की। उसमें से ये प्रोग्राम 30 और 31 अक्टूबर को जारी रहा और साबिक़ा असातीन इल्म में से असातिज़ाए किराम, चंद असातिज़ाए किराम तशरीफ़ लाए, जिनमें आज के हमारे ख़ास तौर पर ज़ैफ़ शरफ़ हाफिज़ मसूद आलम हफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ लाए और जनाब उमर फ़ारूक सईदी साहब और हमारे उस्ताद जनाब शेख अताउल्लाह साजिद हाफिज़हुमुल्लाह जमीअन वरआहुम, डॉक्टर खलीलुर रहमान लखवी हाफिज़हुल्लाह ताला। तो उसका एक मक्ता जो है इंशाअल्लाह नुलाहिज़ मक्ता फ़िदियो अला शाशा ले बिज़ात दक़ाइक़। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। وأكون للخير العميم مثالا، أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا، وأراقب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى
وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجالا وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجالا أجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا فأكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم ये मुल्तका अबनाउल जामिया का एक छोटा सा वीडियो क्लिप था जो आपने मुलाहजा किया और ये हम सब के लिए इंतहाई इत्मीनान की बात है, मोहसिनीन के लिए, असातिज़ा इकराम के लिए और जो भी जिस लिहाज से भी इस जामिया की तरक्की इज़्दिहार के लिए कोशिश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिशें बराबर हैं। ये तलबाए किराम जो सन 80 से सन 95 तक जामिया में पढ़ते रहे, आज उनमें से बहुत से बड़े उलमाए किराम में इनका शुमार होता है और कुछ शयूहुल हदीस हैं, शुबहाए ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अंदाज से वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। कोई
इल्म की आबियारी करते हुए, कोई और काम करते हुए, लेकिन सबकी मंजिल और नज़र एक हदफ पर है कि अल्लाह का दीन गालिब हो। और ये आपने जो कुछ मुलाहजा किया, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करने वालों का एक अंदाज़ था। अब बारी है जो हमारे इस प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है, और वो हर साल अबनाउल जामे में से जो जामे से पढ़ के फ़ारिग हो गए और फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे वो काम कर रहे हैं, तो इस दफ़ा जो अबनाउल जामे में से आपके सामने खिताब करेंगे वो डॉक्टर मोहम्मद हुसैन लखवी हाफिज़हुल्लाह ताला और शेख मोहम्मद ताहिर बाग हाफिज़हुल्लाह ताला। जामिया अबी बकर में इन्होंने तालीम हासिल की, फिर अल्लाह की तौफीक से जामिया मलिक सऊद में आला तालीम के लिए गए। अब बारी है जो हमारे इस प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है, और वो हर साल अबनाउल जामे में से जो जामे से पढ़ के फ़ारिग हो गए और फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे वो काम कर रहे हैं। तो इस दफ़ा जो अबनाउल जामे में से आपके सामने खिताब करेंगे वो डॉक्टर मोहम्मद हुसैन लखवी हाफिज़हुल्लाह ताला और शेख मोहम्मद ताहिर बाग हाफिज़हुल्लाह ताला। जामिया अबी बकर में इन्होंने तालीम हासिल की, फिर अल्लाह की तौफीक से जामिया मलिक सऊद में आला तालीम के लिए गए। वहाँ से फ़रागत के बाद मोहतरम मुअस्सिसुल जामिया प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह रहमहुल्लाह ताला उनकी दावत पर जामिया में तदरीस शुरू की, और ताहाल तकरीबन 30 साल से इस मुक़द्दस फ़र्ज़ की अदायगी में जुटे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन लखवी हाफिज़हुल्लाह ताला से इस्तदा करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पर रहम करम फरमाया और कबूल हो गए। जब लेटर आया तो उस वक्त डॉक्टर अब्दुल जवाद साहब मुदीर तालीम थे। उन्होंने हमारे तमाम मामला जो वीज़े के होते हैं सब क्लियर करवाए। फिर हम दोनों साथी जामिया मलिक सऊद में पहुंचते हैं, और वहाँ सकन के और क्लास के इजरात करने के बाद हमारे एक दोस्त नजीबुर रहमान कैलानी साहब लाहौर के, उनसे मुलाकात होती है, और दूसरे महमूद शाह साहब वो उनसे मुलाकात होती है, और उन्होंने कहा सुनहरी मौका है, इजरात पूरे हो गए हैं, हम आपको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए ले चलते हैं। और हमने सफ़र किया रियाद से मदीना, फिर मदीना से मक्का, फिर मक्का से वापस रियाद आ गए। 2 साल महदुल लुग़ल अरबिया किया, और उसके बाद FA की सनद पर हमारा दाखिला कुलिया में हुआ। FA मैंने जामिया अबी बकर में आकर प्राइवेट किया था, और वहाँ कुलिया करने के बाद कबल इसके कि हम फारिग होकर आए, हमारी मुलाकातें वहाँ शेख ज़फ़रुल्लाह मरहूम से बहुत होती थी, और वो बहुत खुश थे कि आप अबनाउल जामिया हैं। और इनके अलावा डॉक्टर फजल अली साहब के दुरूस में शरीक होते थे, और यूनिवर्सिटी में ही शेख अहमद दीदात मरहूम, शेख इब्न माद मरहूम और शेख सालेह अल उसामीन मरहूम रहमहुल्लाह ताला, इनके लेक्चर होते थे, उसमें शिरकत करते थे। बहरहाल ये वक्त गुजर गया जब हमने फरागत की, और उस वक्त शेख ज़फ़र मरहूम से हमने राब्ता किया। तो राब्ता करने के बाद उन्होंने कहा कि आपका टारगेट जामिया अबी बकर है, आप अबनाउल जामिया हैं, और जामिया में ही आपने आकर पढ़ाना है। समन वतातन सर तस्लीम खम कर लिया। शेख साहब के हुक्म के साथ हम जामिया अबी बकर में मैं और शेख ताहिर बाग साहब ने 1993 से पढ़ाना शुरू कर दिया।
और इसी पढ़ाई के दौरान शेख ज़फ़रुल्लाह मरहूम नसीहत किया करते थे कि आपने आगे पढ़ना है, एमए करें। एमए कराची यूनिवर्सिटी से कर लिया और करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि आप पीएचडी करें। मैंने पूछा शेख साहब टॉपिक कौन सा होगा? उन्होंने बड़े प्यार से कहा, मोहब्बत और शफकत के लहजे में कहा, आप अपने खानदान पर पीएचडी करें। क्यों? कि आपका खानदान 200 साल मुहित है, इल्मी दीनी सियासी खिदमात हैं। आप लिखें। अल्लाह जज़ाए खैर दे शेख तौला साजिद साहब को, जिन्होंने मेरी रहनुमाई की। और इस मौके पर जितने तमाम असाज़ा थे वो सब हमारी रहनुमाई करते थे। और इसी दौरान फिर मैंने पीएचडी कर लिया। इससे पहले जब मैंने एमए की खुशखबरी शेख मरहूम को सुनाई तो बहुत खुश हुए। अपने बच्चों से बढ़कर हमसे प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत और शफकत से पेश आते थे। रहमहुल्लाह रहमतन वासिया। जद्दा में एक जगह है जिसका नाम है बाबे मक्का, जिसे कहा जाता है। तो अभी जब ये बात कर रहे थे तो मेरे दिल में ये बात आई कि हकीकत में जामा अबी बकर जो है वो बाबे मक्का है, कि यहाँ आने वाले खुश नसीब तालिब इल्म अल्लाह की तौफीक से मक्का और मदीना की ज़ियारत से फैज़याब हुए। डॉक्टर साहब ने आपके सामने बातें रखी और उनके खिताब का जो एक बेहतरीन ख़ास पहलू है वो ये है कि उन्होंने जहाँ अपनी बातें बताई वहाँ अपने बाद में आने वाले साथी मोहतरम शेख मोहम्मद ताहिर बाग साहब का भी खिताब का बहुत सारा हिस्सा आपके सामने रख दिया। लेकिन इसके बावजूद मैं दावत दूंगा मोहतरम जनाब शेख मोहम्मद ताहिर बाग हाफिज़हुल्लाह ताला कि वो आए और मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से ये मेरे हम सफ़र शेख मोहम्मद हुसैन लखवी साहब हम एक ही गांव में पैदा हुए और अल्लाह की तौफीक से पैदाइश से लेकर अभी तक हम एक साथ चल रहे हैं। जब हम पढ़ते थे, गांव में पढ़ते थे, उस वक्त भी हमें ये नहीं था कि ये किसका घर है। अक्सर इकट्ठे ही रहते थे, सिर्फ रात को सोने के लिए अपना अलग अलग होते थे। इनका खानदान तो इल्मी खानदान है, लेकिन मेरा खानदान जो है, मैं जब ये हदीस पढ़ता हूँ मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जब उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल मुझे ऐसा अमल बताएं जो मुझे जन्नत के करीब कर दे, जहन्नम से दूर कर दे, तो आपने ये फरमाया था कि ये सवाल बहुत बड़ा किया है, लेकिन ये बहुत आसान है। किसके लिए आसान है? जिसके लिए अल्लाह आसान करते हैं। यही मेरी मिसाल आप समझ लें। मेरे खानदान में मेरे वालिद अहले हदीस थे और बाकी मेरे खानदान वाले अहले हदीस नहीं थे। मेरा आने का जो सबब बना, ये बहुत बड़ी नेकी है। शेख रहमान लखवी साहब हाफिज़हुल्लाह
उनके चाचा और ससुर। जब हमने मैट्रिक किया तो हमारे गांव के 18 तालिब इल्म थे और जब रिजल्ट आया उनमें सिर्फ मैं पास हुआ। मस्जिद में नमाज़ें तो हम पढ़ते थे हदीसों की मस्जिद में। उन्होंने मुझे फरमाया कि आप ये जामियात में पहले यही मशहूर था कि जो स्कूल में नहीं पढ़ सकता वही मदरसे में जाता है, तो आप ऐसे करें कि आप जो है दीन का इल्म हासिल करें। अब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था। ज्वाइंट फैमिली, चाचे और ताए के साथ रहते थे, खेती बाड़ी का काम था। तो मैंने उनको कहा मैं तो जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे सरपरस्त जो हैं चाचा, मेरा उनसे बात कर लें, अगर वो इजाजत दे दें मैं चला जाऊंगा। ये अल्लाह की तौफीक से होता है। ये बहुत बड़ा मनसब है, ये दीन का इल्म हासिल करना जो है, इसको हम मामूली ना समझें, ये बहुत बड़ा मनसब है। अब्बास की चाचा मान नहीं रहा, कहते यही तो हमारे पास एक बच्चा है जो सही काम करता है, इसको हम काजी तो नहीं बनाना चाहते। ये अल्फाज से काजी नहीं बनाना चाहते। फिर भी उनकी मेहनत से ताए के पास गया और ये तालिब इल्म जो पढ़ रहे हैं, मैं आपको सब हमारे लिए पहले तो शैतान हमले करता है कि वो नेकी की तरफ आए ना, और फिर हमले करता है कि अभी ये नेकी से भाग जाए या इसकी नेकी कबूल ना हो। अब मैंने 1 आधा साल पढ़ा, उसके बाद जो है वो मेरे कजन जो है उनके मुर्गी खाने थे। मैंने भी कहा कि मैं ये किधर आ गया, मुर्गी खाना बनाता हूं। अब मुर्गी खाने की पूरी तैयारी कर ली। उसके बाद मोहम्मद लखवी साहब मुझसे 2 साल पहले जामे में आ गए थे। एक दौरा हुआ, मैंने कहा मैं कराची की सैर करनी है। उस दौरे मुस्तफा हदीस का दौरा था, उसमें दाखिला हो गया, लेकिन अल्लाह ने ये तौफीक दी। उस दौरे में मैंने मेहनत की और मैं कुछ नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें मैं फर्स्ट आ गया। और जब मैं जामिया का माहौल देखा, ये शेख रहमुल्लाह, ये उनका इखलास था, बड़ा सुकून मुझे नसीब हुआ, बड़ा इत्मीनान। और जब हमने ये पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद हम छुट्टियां भी यहाँ गुजारते थे, इस कदर जामिया में हमें सुकून मिलता। एक मेरा पेपर था, 8 दिन बाद, दरमियान साल की छुट्टियां थी, हम वापस आ गए। मैंने वो पेपर छोड़ दिया। जब मैं वापस गया, वो जो सब्जेक्ट है वो वही उस्ताद पढ़ाते थे। हालांकि वो मुनकरे हदीस थे और क्लास के अंदर हमारी अक्सर उनके साथ बहस होती थी। जब मैं पहुंचा दोबारा उसके बाद, कहने लगे आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैंने कहा मैंने पेपर नहीं दिया, फेल हो गया हूं। कहने लगे आपने आज के बाद मेरे स्पीड में नहीं आना, ये धब्बा जो है रिजल्ट कार्ड में लगा है, ये आप जैसे तालिब इल्म जो है उनके रिजल्ट कार्ड में धब्बा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कोशिश करके मेरा पेपर ले लिया जो मैंने छोड़ा हुआ था, और वो जो फेल था रिजल्ट कार्ड में वो खत्म हो गया। एक और वाकया बयान करके मैं खत्म करता हूं कि हमारे सऊदिया के अंदर, जामियात के अंदर, इस जामिया बकर क्या मकाम है। हमारा एक तालिब मरकज पढ़ा था,
मेरा शगीर्द है वो। सिर्फ पढ़कर 2 साल पढ़ा, और जब वहां गया तो वो वहां भी बाहर में दाखिला लेना चाहता था। अब उन्होंने इनकार कर दिया, उसने सिफारिशें भी लगाई, सिर्फ इस बात को सामने रखते हुए कहते ये मुमकिन नहीं है कि आप जामा बकर से आए हैं और आपको अरबी ना आती हो, ये मुमकिन ही नहीं है कि शोबे में आप काम दाखिला करने जामा बकर से आए हो। अब चंद मिनटों के लिए मैं दावत दूंगा बुलबुल सिंध मोहतरम जनाब शेख इब्राहिम तारिक हाफिज़हुल्लाह ताला, वो तशरीफ़ लाएँ और महफिल को गरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व बअद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मेरा नाम भी उनमें आता है जो जामिया अबी बकर इस्लामिया के अबना कहा जाता है, और मैं अल्लाह के फजलो करम से इस बात पे हमेशा फ़ख्र करता हूँ कि मैं जामिया का बेटा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे शेख पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, जो इस अंदाज में फरमाया करते थे जब मदीना मुनव्वरा में मुलाकात होती, पुत असा हुण किते नहीं जाना, सीधे जामिया आना। जामिया अबी बकर ही हमारी पहचान है, और ये बात याद रखना, जामिया में आके हमें पता चला कि अल्लाह ताला की तौहीद क्या है। रब की पहचान यहां आकर के पता चली, इसलिए कि हमारा भी सारा खानदान आज तक मेरा ननिहाल बरेलवी है। हमारे घरों में तमाम वो काम होते थे जो बिदआत पे मबनी, शिरक पे मबनी। यहां आकर के पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला की जात, उसकी पहचान, उसके नाम, उसके सिफात, और ये आज भी जो बंदा जान जाएगा इंशाअल्लाह वो हर जगह पे कामयाब होगा। ये बड़ी मजलिस है, उलमाए किराम के खिताबात भी पहले भी हुए। शेख मोहतरम की मौजूदगी में कोई बात करना मुझ में तो हिम्मत नहीं हो रही थी। हमारे उस्ताद मोहतरम हैं जनाब हाफिज मसूद आलिम साहब, जिनसे हमने बुखारी शरीफ पढ़ी थी, अब उनकी मौजूदगी में कोई बात करना हिम्मत तो नहीं, लेकिन मेरे भाई का आर्डर था 2-3 बातें कर दें, तो मैं आप तमाम अहबाब को ये पैगाम देना चाहता हूं, वो काम कीजिए जिनसे रब राजी हो, और जब रब राजी होता है तो आपको दुनिया की हर नेमत अता कर देता है। और रब की रज़ा बंदे को कैसे मिलती है, उसके लिए आप सबसे पहले इखलास पैदा करें। सबसे पहले अल्लाह ताला के दर पे आने वाले बने, और जानिए जब आप ये काम कर लेंगे तो आपका रब आपको देख के खुश होगा। और ये बात रखना, याद रखना, खुशी का मतलब सिर्फ खुशी नहीं है, बल्कि रब अपने बंदों को देख करके हंसता है। और मुस्नद अहमद की हदीस जामिया में ऐलान करता हूं, मेरे नबी ने फरमाया, जिस बंदे को देख के रब हंस दे फला हिसाब अलैहि, उस बंदे का कोई हिसाब नहीं होगा।
उस बंदे का रब हिसाब नहीं लेगा। और अल्लाह ताला हंसता है, हदीसों के अंदर मौजूद है, वो मर्जी वाला है, जब चाहे हंस दे, जब चाहे आप पे राजी हो जाए। और 3 ऐसे काम हैं जो बड़े आसानी से हो जाते हैं। पहली बात, जिहाद। लोग तो आज उसका नाम लेना छोड़ के डरते हुए, मुश्किल लग रहा है। ठीक है, आप नहीं जा सकते हैं, नीयत है, अकीदा है, तमन्ना है। और इस दौर में अपने घरों से शिरक को मिटाना, बिदात को खत्म करना, बच्चों को दीन पे लगाना, ये सबसे बड़े जहाद है। और दूसरी बात, रात को अल्लाह के सामने खड़ा होना। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, सलासतुन, 3 ऐसे बंदे हैं जिनकी तरफ देख के रब हंसता है, उनसे प्यार भी करता है, उनके लिए बिशारत भी है। पहला वो जो मुजाहिद है, जाके शहीद हो जाए। दूसरा वो अल्लाह ने उसको खूबसूरत बीवी दी है, सिर्फ बीवी ही नहीं दी बल्कि उसका बिस्तर जो है फिराशुन लय्यनुन, बड़ा नरम नरम बिस्तर है, उस पे लेटा हुआ है। खूबसूरत बीवी को छोड़ के जब रब के सामने खड़ा होता है, रब इस बंदे को देख करके भी हंसता है। तीसरा वो बंदा जो सफर में भी था, किसी रकब के साथ था, जमात के साथ था, कहीं गया हुआ, चाहता लो शाअ लरकदा, चाहता तो ये भी सो जाता, लेट जाता, लेकिन ये खड़ा होता है। कामा फी सर्रा व दर्रा, खड़ा होता है, मुश्किल के साथ भी, तंगी के साथ भी, तकलीफ के साथ भी। जब ये खड़ा होता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है, अल्लाह के सामने खड़ा होता है, तो रब इस बंदे को देख के हंसता है। और याद रखना, जिसको देख के रब हंस दे वो बंदा कामयाब है, वो बंदा कामयाब है। इसलिए मेरे भाइयों, ये मुख्तसर टाइम में यही पैगाम है, अमल वो करें जिसको देख के रब खुश हो जाए। और जब रब हंस देगा, आपका हिसाब नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तआला हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान, व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ात, तौसीफ़ात, तस्बीहात, तहमीदात, तय्यबात, सलावात, तकबीरात, तमजीदात, अच्छे कलिमात अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं। दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए, जो हमारे आका हैं, रहबर हैं, रहनुमा हैं, उसवा हैं, क़ुदवा हैं, मिसाल हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की पैरवी में हमारी निजात है। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का जिस कदर भी शुक्र अदा करूं, तो वो शुक्र उसका हक नहीं अदा कर सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ही के फजल से, अल्लाह तबारक व तआला ही के करम से, अल्लाह तबारक व तआला ही के एहसान से तमाम नेक काम पाए तकमील को पहुँचते हैं। वो इस कदर करीम ज़ात है कि तौफीक भी खुद ही देता है और फिर जो है रिवार्ड भी देता है, अजर भी देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला का जिस कदर शुक्र अदा किया जाए, उस कदर जो है वो शुक्र कम है। और फिर मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं है, वो दरअसल अल्लाह तबारक व तआला का भी शुक्रगुजार नहीं है। वालिद गिरामी ने हमेशा ये पैगाम दिया है कि ये जामिया मुसलमानों का जामिया है,
वो बड़े साफ अल्फाज में ये कहा करते थे, आप देखें इस कदर सरी बात किया करते थे कि ये तुम्हारे बाप का जामिया नहीं है, ये वो पैगाम दिया करते थे। और हमें ये वो तरबियत दी है कि अगर आप कोई नेकी करते हो तो ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तौफीक दी है। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। और फिर वो ये नहीं कहा करते थे कि ये हमारा कोई इसमें अमल दखल है, बल्कि वो ये कहा करते थे कि ये मेरे साथियों की जो है वो काबिश है, ये मेरी साथियों की मेहनत है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है तो साथ में फिर साथियों का भी जिक्र किया। तो इन साथियों के बगैर जो है ये मुमकिन नहीं है। और हमेशा ये दुआ रहती है कि अल्लाह तबारक व तआला मुखलिस तालिब इल्म दे, मुखलिस असातिज़ा दे, मुखलिस मुहसिनीन दे, मुखलिस इदारियीन दे, क्योंकि इखलास के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों को जो है वो फलता है, फूलता है ये चमन। और अगर इखलास नहीं है तो हो सकता है लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, हो सकता है कि लोगों का कुछ बन रहा हो, लेकिन बजाते खुद इंसान जो है वो महरूम हो जाता है। और सिर्फ महरूम नहीं होता, ये जो है वो जीरो से ज़रब नहीं खाती चीज़ें, फिर वो माइनस अदद के साथ जो है चीज़ें ज़रब खाती हैं। फिर जो है वो नतीजा रिजल्ट जो है नेकी की सूरत में नहीं निकलता, बल्कि अव्वलु मन युसअरु बिहुमुन नार, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जिनके साथ आग को भड़काना है उसमें एक आलिम दीन है, दूसरा जो है वो सखी है, तीसरा बज़ाहिरन अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जान देने वाला है। और कहा जाएगा कि झूठ बोल रहे हो तुमने ये जो है वो लोगों के लिए किया है, और फिर उन्हें जहन्नुम का शिकार बना दिया जाएगा। तो जो भी बुनियाद में हैं, चौधरी अब्दुर रहमान रहमहुमुल्लाह ताला और बहुत सारे नाम जिक्र किए गए हैं, जो बुनियादों में हैं उस बुनियादों को बाद में आने वाले नहीं पहुंच सकते। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ये जामिया अबी बकर सिर्फ और सिर्फ जो है मौलाना आयश मोहम्मद साहब हमारे सरपरस्त हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये इदारा दरअसल अब इनका इदारा है। वाले साहब गाजी अब्दुल करीम रहमहुल्लाह के बारे में जो है कहा करते थे कि अगर मुझे ये कान से पकड़कर बाहर निकाल दे तो मैं फौरन बाहर निकल जाऊंगा। आज ये हैसियत अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे वालिद गिरामी के दोस्त, बल्कि वालिद गिरामी ही की जगह है, शेख मौलाना आयश मोहम्मद साहब, पहले तो मारूफ आयश मोहम्मद साहब से ही हैं, अब इनका नाम मोहम्मद बिन फजलदीन है। तो इनके जो है वो सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया अबी बकर चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला जो भी जामिया अबी बकर के साथ मुआविनीन है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं मुख्तसर सा जो है वो जामिया अबी बकर और उसकी मुल्हिका जो शाखें हैं उसका तारुफ आपके सामने रखना चाहूँगा। शुरू करें जी। जामिया अबी बकर अल इस्लामिया जो है, जिसमें आपको मालूम है कि दरस निज़ामी के अलावा दरस निज़ामी में यहाँ पर वही सिलेबस पढ़ाया जाता है जो जामिया इस्लामिया में पढ़ाया जाता है, और मराहिल भी जो है वही हैं। ये जामिया अबी बकर की जो है वो बिल्डिंग है, ये 3 ब्लॉक पर मुश्तमिल है। पीछे जो है लाइब्रेरी है और साथ में जो है मस्जिद वगैरह है। इस जामिया के अंदर गुंजाइश ही तकरीबन 550-600 तलबा की रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 650 जो है वो तादाद रहती है। तो दरस निज़ामी है जिसका सिलेबस जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के साथ जो है, और मीडियम हमारे यहाँ अरबी है। उसके अलावा जो है वो शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 2 क्लासें हैं। इस शोबे को एक्सटेंड जो है वो करना है इंशाअल्लाह, और ये तादाद हमारा इरादा है कि
300 तक लेकर जाएं। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन इरादों को पाए तकमील तक पहुँचाए। ये जो है वो क्लास है। जामिया अबी बकर में ही जो तलबा ऐसे आते हैं, आपको मालूम है इससे पहले तो तकरीबन 35 ममालिक के बच्चे यहाँ पर पढ़ा करते थे। जिस वक्त जो है 9/11 हुआ है तो कुछ मुश्किलात पेश आई और वो तलबा जो है अपने मुल्कों को वापस चले गए। तो हमने अंदरून सिंध और अंदरून बलूचिस्तान इसको तरकीज़ इसके ऊपर की है। और अंदरून बलूचिस्तान या अंदरून सिंध का अलमिया ये है कि सर्टिफिकेट तो उनके पास होता है, हमारे यहाँ शायद मिडल जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए दाखिले के लिए, लेकिन इल्म नहीं होता। तो हमने जामिया अबी बकर के अंदर ही साइंस के साथ जो है वो स्कूल 6ठी से लेकर मैट्रिक तक हम साइंस के साथ स्कूल करवाते हैं और इसमें बलोची बच्चों को और जो है सिंधी बच्चों को तरजीह दी जाती है। यहाँ पर दाखिले की शराइत के लिए पंजाब से आने वाले बच्चे के लिए क्राइटेरिया कुछ और है, उनसे सख्त जो है वो उनको मुकाबले के बाद बिठाया जाता है, लेकिन अंदरून सिंध और बलूचिस्तान से आने वाले बच्चों को आसानी के साथ दाखिला दे दिया जाता है और जो उनकी कमियां और कोताहियां हैं हम उसके बाद उसको पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। जामिया अबी बकर में अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम लाइब्रेरी है, तकरीबन 50,000 जो है किताबें हैं इसके अंदर। और अब हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि इसमें 10 से लेकर 12 बजे तक औरतों के लिए भी वो विज़िट कर सकती हैं और जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर जो है वो इल्म से मुताल्लिक़ किताबें मौजूद हैं। तो यहाँ पर आकर आप कोई भी बाहर से आने वाला, कराची यूनिवर्सिटी से आपको मालूम है ये तरीक़ुल जामियात है, इसके ऊपर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है, उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी है, उसके बाद NED यूनिवर्सिटी है और भी यहाँ पर इस लाइन के ऊपर बहुत सारे मदारिस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस तरफ चले जाएँ तो देवबंदी मदारिस हैं, ये साथ में हमारे बरेलवी मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अबी बकर में कभी भी किसी भी शख्स को इस्तिफादा अगर वो हासिल करना चाहता है तो कोई कदगन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। आगे चलिए। जामिया अबी बकर के अंदर जो है हम निसाबी सरगर्मियाँ भी होती हैं, ये तालीमी सरगर्मियाँ तो आपको बताया गया है। हम निसाबी सरगर्मियों में जो है नादी अल अदबी अल अरबी के नाम से यहाँ पर जो बच्चों की तकरीरी सलाहियतें हैं, तहरीरी सलाहियतें हैं, हर बुध वाले दिन ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह होता है और ये मुसलसल तसलसल के साथ जारी रहता है। और बल्कि जामिया अबी बकर में सुबह जो ताबूर होती है उसके अंदर भी हम तकरीर, एक बच्चा तिलावत करता है, दूसरा बच्चा जो है अनाउंसमेंट करता है, तीसरा बच्चा जो है तकरीर करता है। ये हर रोज़ का मामूल है और हर रोज़ 3 तलबा नए होते हैं जिन्होंने ये सारी, और बुध वाले दिन जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है अरबी तकरीरी मुकाबला होता है, जिसका फिर एक शिशमाही मुकाबला होता है और एक फिर सालाना मुकाबला जो है वो होता है। ये उनका प्रोग्राम जो हुआ था, पीछे कीजिएगा एक दफ़ा, ये प्रोग्राम जो सालाना हुआ था ये उसकी तस्वीरी कुछ झलकियाँ हैं। आगे चलिए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इसी हम निसाबी सरगर्मियों में एक सिलसिला हिफ्जुल मुतून है जिसमें तकरीबन 43 तलबा शरीक हैं। ये बराह रास्त मस्जिद नबवी से इसकी क्लासेस होती हैं और पहले मरहले में है जिसमें हमारे मोहतरम उस्ताद जो है खालिद साहब भी शरीक हैं। तो ये उनकी निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आपको मालूम है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना और इस सिलसिले में जो किताबें हैं उनको याद करना, ये बड़ा अजीम काम है। अल्हम्दुलिल्लाह बराह रास्त मस्जिद नबवी से ये लेक्चर होता है और ये सर्टिफिकेट भी बाद में 6 मराहिल के बाद मस्जिद नबवी ही से जारी होगा। जामिया अबी बकर का ये मुजल्ला मैगजीन है उसवा हसना, तकरीबन 17 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये तसलसल के साथ माहनामा है जिसके अंदर उर्दू, अरबी और एक आध इंग्लिश का भी मजमून होता है। ये हर माह होता है, आता है। इसमें इस्लाही मुजल्ला है, इल्मी मुजल्ला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है जामिया अबी बकर को एजाज़ हासिल है कि ये क्योंकि हालात हाज़िरा पर होता है तो खुतबा को बड़ी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है सहूलत मिलती है। मुदीर मुजल्ला जो है डॉक्टर मकबूल अहमद मक्की साहब हैं जो मुल्क कुरा से फारिग हैं और इन्होंने ही ये बानी है इस मुजल्ले के। और साथ साथ में इसी मुजल्ले के तहत 3 जो है वो तसनीफ़ात भी हैं। 3 तसनीफ़ात हैं बच्चों की तरबियत
संदेश हदीस जो है अभी ये डॉक्टर अब्दुल हई मदनी साहब हैं, ये भी जामिया अबू बकर के अबना हैं, अभी अबनाउल जामिया बात कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त NED यूनिवर्सिटी में इनका 20वां ग्रेड है और प्रोफेसर हैं। इन्होंने नुखबतुल हदीस 100 हदीसें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह उसका तर्जुमा किया है, बड़ी बेहतरीन किताबें अभी आई है। और माह रमज़ान ये 3 जो है तसनीफ़ात मुजल्ले की तरफ से आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वो वेबसाइट पर भी है। तो इस लिहाज से इस साल 2021 में तकरीबन 96,000 लोगों ने इससे इस्तिफादा किया है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। दारुल इफ्ताह है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारे मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब और साथ में जो है उनके शरीक मुफ्ती हैं मुफ्ती मोहम्मद शरीफ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से जो है यहाँ से फतवे जो है लिए जाते हैं और हज़ारों लाखों फतवे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो चुके हैं। और इस कदर जो है अथेंटिक बात की जाती है कि हाई कोर्ट ने एक दफ़ा इस फतवे की रोशनी में अपना पूरा फैसला बदल दिया था। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तरीके से रहनुमाई करने की तौफीक अता फरमाए। मरकज़ अल इक़्तिसाद अल इस्लामी है, ये हमारे शेखानी साहब हैं, पूरा ख़र्चा वो उठाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फैज़ुल अबरार जो जामिया अबू बकर ही के अबना में से है, मेरे क्लास फेलो हैं, आजकल कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके ज़रिए निगरानी ये चल रहा है। और जदीद जो तकादे हैं तिजारत के, उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तहकीकी काम कर रहे हैं। इनकी 3 किताबें जामिया के तहत आ चुकी है, मुजारबत और अभी जो आई है हलाल व हराम और मुश्तबिहात के शरई ज़वाबित, ये अभी आई है। और ऑनलाइन तिजारत ये अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अबू बकर जहाँ पर तकरीरी और जो है तालीमी साथ साथ में तहरीरी मैदान में भी खला को कुछ ना कुछ हस्बे बिसात पुर करने की कोशिश कर रहा है। अभी जामिया अबू बकर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो आप यूँ समझ लें कि ये सोशल सरगर्मियाँ हैं या जो है ये जो रिफाही काम है, उस सिलसिले में मकसला जामिया अबू बकर यह भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये फ़ायदा होगा। तस्वीर दिखाइएगा, ये मकसला बनाया है, यहाँ पर जो है वो मैयत को गुस्ल दिया जाएगा और शरई कवायद और ज़वाबित को मलूज़ खातिर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन बना है। बल्कि ये इस कदर साफ़ सुथरा है कि मैं देखकर कहने लगा कि इसको तो देखकर मरने को दिल कचा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो कबूल फरमाए। आगे चलिए जी। जामिया अबू बकर के अबनाउल जामिया ने अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जामिया अबू बकर के साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया। ये बिल्डिंग आपको जिस तरह बताया गया है कि 1980 में जो है तकरीबन मुकम्मल हो गई थी और 1980 से लेकर अभी तक आपको मालूम है मेंटेनेंस का बहुत सारा काम था। तो अबनाउल जामिया ने इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा जो है वो खर्चा हुआ है और अभी भी इसमें जो है वो मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह इरादा है। ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं इन्हें 5 मंजिला करने का इरादा है। एक यहाँ पर ब्लॉक बनाने का इरादा है ताकि यहाँ पर गुंजाइश जो है वो 1000-1200 तलबा तक पहुँच जाए। तो इस सिलसिले में मोहसिनीन से गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में खुसूसी तवज्जो करें। आप देखें कि जिन्होंने ये खर्च किया था अल्लाह तबारक व तआला ने उनके खर्च करने को कबूल फरमाया है और नताइज आपके सामने हैं। जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात, ये जामिया अबू बकर का इदारा है। जिस तरह जामिया अबू बकर अभी ये बात कही गई थी, यहाँ पर अबनाउल जामिया आपको जो नज़र आ रही हैं जिन्होंने बात की है या पाकिस्तानी है, ये शायद 2 महीने या 3 महीने पहले की बात है। अबू बकर फिलिपीनी का टेलीफोन मेरे पास आया, कहने लगा शेख मेरी सनद, अरबी में बात कर रहा था, मेरी सनद गुम हो गई है, आप सनद दोबारा जारी कर दें। 2-4 दफ़ा उनसे बातें हुई तो कहने लगा शेख अब्दुर्रहमान फौत हो गए हैं। मैंने कहा कौन अब्दुर्रहमान? कहने लगे मेरे क्लास फेलो थे जो 1996 में मेरे साथ पढ़ते थे। तो मैंने कहा अब्दुर्रहमान की जो है वो क्या कर रहा था वो? कहने लगे जो फिलिपीन में सबसे बड़ा मदरसा है उसका 16 साल से वो मुदीर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा। सूफी अब्दुल्ला राहिमहुल्लाह ने जब वाले साहब को हुक्म दिया था कि कराची में काम करो तो साथ साथ में ये कहा था ज़फ़रुल्लाह कराची में काम करो, दुनिया में काम होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मर्दे कलंदर की बात को लइन सअलनी लउतियन्नहु व लइन इस्तआदनी लउईदन्नहु,
अल्लाह तबारक व तआला के कुछ बंदे इस तरह के होते हैं, जब वो सवाल करते हैं, जब वो बात करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसमें एक नुक्ते की भी तब्दीली नहीं करता। और जब वो किसी चीज़ से पनाह मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको पनाह अता कर देते हैं। कहा दुनिया में काम होगा। मुझे याद आया, मैंने अब्दुर्रहमान के बारे में तो पूछ लिया है, अबू बकर तुम क्या कर रहे हो? तो अबू बकर फिलिपीनी कहने लगा मैं दावत का काम कर रहा हूँ। कोई रिजल्ट भी है? कहने लगा 350 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। मेरे हाथ पर 350 लोगों ने ये एक तालिब इल्म है, अल्लाह तबारक व तआला जो है वो कबूल फरमाए। जामिया आयशा सिद्दीका जिस तरह जामिया अबी बकर ये पहली जामिया है इस सिंध के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर कोई मदरसा ऐसा नहीं है जिसमें यहाँ की मुतखर्रिजा या उससे इस्तिफादा करने वाली चाहे वो जो है मुदर्रिसा या तालिबान जो है ना हो। पूरे जिस तरह जामिया अबी बकर को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल आम दुनिया में बख्शा है, ये सिंध के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा काम है। आप अंदरून सिंध किसी भी बच्चियों के मदरसे में चले जाएं, जामिया आयशा सिद्दीका, इसमें तकरीबन 200 से 250 के करीब तालिबात होती हैं। और अभी तकरीबन बुखारी बुध वाले दिन इनकी है 12 तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह सनदे तखर्रुज जो है वो हासिल कर रही हैं। और भी इसमें शोबा तहफीज़ भी है और भी मुख्तलिफ जो है शोबाजात। जामिया अबी बकर में औरतों को के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे ला तमनऊ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों से ना रोका करो। हमारे यहाँ तालीमी काम जो है उसका एहतमाम मर्दों में तो होता है, औरतें महरूम रहती हैं। हाँ जी, इस्लाम इसका बिल्कुल हौसला अफजाई नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि वो आपके साथ शरीक है। हाँ, इन्नल्लाह ला युदीउ अजरा अमल आमिल मिनकुम मिन दकरिन औ उनसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अबी बकर में भी हमने जो है ये तरबियती और इस्लाही वर्कशॉप अल-हुदा के ताउन से जो है वो किए हैं। यहाँ पर तकरीबन 300 के करीब जो है वो यहाँ पर औरतों ने इस्तिफादा किया है। ये मुख्तलिफ वर्कशॉप हैं जो हमने यहाँ पर की हैं। इसके ये जो टाइटल है, अभी इसी सिलसिले में जामिया ही में हम 21 मार्च को 2020 सुबह 11 से 11:15 बजे तक ख़वातीन के लिए दौरे कुरान रख रहे हैं, ताकि इस छुट्टियों में हमें अपने बेटियों और बहनों और माओं की तरबियत करने का जो है वो मौका मिले। जी आगे चलिए। जामिया अबी बकर का एक मुल्हिक स्कूल है, न्यू कराची के अंदर पसमानदा इलाके में है। तकरीबन इस वक्त जो है 500 के करीब जो है तलबा और तालिबात वहाँ पर पढ़ रहे हैं। इससे पहले कोविड से पहले जो है तकरीबन 1200 के करीब ये तादाद थी, और हमें उम्मीद है कि ये तादाद अब इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। जामिया अबी बकर के जो मिल्हिक इदारे हैं उसमें रोल मॉडल बड़ा नुमाया नाम है, आप सब लोग इससे मुतारिफ होंगे। जामिया अबी बकर का जो तालीमी निज़ाम यहाँ पर पढ़ाया जाता है वही पूरा का पूरा कोर्स जो जामिया अबी बकर ही, आपको मालूम है सलमान साहब सरवाना जो है वो सलमान साहब जो है इसके वो सरपरस्त हैं। तो लेकिन जो शोबा चल रहा है वो मुदीर तालीम हमारे साहब अबू उमर यूसुफ साहब उनकी निगरानी में चल रहा है। बच्चियों के लिए भी अरबी में तालीम है वही, हाँ जी, मरकज़ुल लुगा, सानविया और कुल्लिया, हाँ जी, और इसी तरह बच्चों के लिए भी है। और ये ऑनलाइन भी इनका जो है वो चल रहा है। इनके असातिज़ा का इंतखाब जामिया अबी बकर की तरफ से किया जाता है। जामिया अबी बकर ही निगरानी करता है, जामिया अबी बकर ही इम्तिहानात की निगरानी करता है, और बाद में जामिया अबी बकर ही की सनद दी जाती है। मरकज़ अब्दुल्ला बिन मसूद, ये हमारे मोहतरम उस्ताद ताहिर आसिफ साहब हैं, इनके ज़रिए निगरानी मॉडल कॉलोनी में चल रहा है। शोबा तहफ़ीज़ है और बड़ा नुमाया और बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल व मंजूर फरमाए। जामिया अबी बकर के जो मुस्तकबिल के मंसूबे हैं उनमें एक हरमैन कम्प्लेक्स है जो जामिया अबी बकर के पास ज़मीन है तकरीबन 50 एकड़, ये आपको सामने नज़र आ रही है। इसमें सामने आपको जो नज़र आ रही है मस्जिद है जिसके सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। पीछे एक जो है वो स्कूल है, यहाँ पर स्कूल भी जो है वो चल रहा है। लेकिन जामिया अबी बकर का मुस्तकबिल में मंसूबा इसे मदीनातुल इल्म बनाने का है। मदीनातुल इल्म जिसमें दीनी और दुनियावी तालीम का हसीन इम्तिजाज होगा। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादिल किताबि अक़वामन व यदउ बिही अला आखरीन।
जो है इसके ऊपर तरजीह करते हुए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, इसके लिए दुआओं की दरख्वास्त है और जो है ताउन की दरख्वास्त है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जामिया अबी बकर का अभी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और ऑफिशियल पेज ये सामने है आपका। इसको जो है सब्सक्राइब बोलना भी नहीं आता मुझे, जो भी है वो आप कीजिए और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जामिया अबी बकर एक ऑफिशियल वेबसाइट भी जो है लॉन्च कर रहा है, तो इंशाल्लाह इसके लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला जो भी हम कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला इसमें इखलास अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इसे बाबरकत बना दे और अल्लाह तबारक व तआला इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा दे। मैं एक दफ़ा फिर ख़ास तौर पर जो है सबका ही सबसे पहले तलबा का शुक्रिया है। तलबा वो मरकज़ और महवर है जिसके इर्द गिर्द सारी सरगर्मियाँ हैं। असातिज़ा भी हम इसीलिए यहाँ पर हैं, जो इदारीन हैं, जो ये बिल्डिंग है, जो कुछ भी है, मरकज़ और महवर ये सामने बैठे हुए हैं।